Today we are studying aromatic hydrocarbons. In our last lecture we have studied about the aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons. These are open chain compounds. These are open chain compounds, and in which alkanes, alkenes and alkynes are included. Okay. Now today we are studying aromatic, aliphatic hydrocarbons and aromatic. Aroma means smell, and hydrocarbons means such compound containing carbon and hydrogen. Okay. Now what is meant by aromatic hydrocarbons? The compounds like benzene, and compounds resembles to benzene having chemical and physical properties in resemblance, that compound are called as aromatic hydrocarbons. Now first we see what is benzene. Benzene is nothing but the aromatic compound having structure like this. Okay. See details about it. The formula for benzene is C6H6. Okay. Now here structure of benzene contains 6 hydrogens, to which hydrogen attached, one atom of hydrogen attached to it, and there is a alternate double bond between carbon-carbon atom. Okay, now see here, alternate carbon is this, so here and here, alternate double bond is there. Again we can write it as okay. Now see this. If we consider this is the first carbon, second, third, fourth, 5 and 6. If there is a double bond between second and third, fourth and fifth, sixth and 1. In this structure, the double bond is alternately arranged. Now here the double bond is between 1 and 2 carbon atom number, 3 and 4, 5 and 6. These are two alternate structures of benzene. Okay. Now let's see some other hydrocarbons, aromatic hydrocarbons. This one is benzene. Next structure is this structure is called as methyl benzene. Next is name of this compound is bromobenzene. Other chlorobenzene. This one is nitrobenzene. Nitrobenzene. This group is methyl group. Okay. Bromo, chloro and nitro. Parent compound is benzene. Okay. Now
some other compound or some other examples of aromatic hydrocarbons are, this one is benzene, single ring compound. Here is double ring. 2 rings of benzene are there. Name of this compound is naphthalene. And here 3 benzene rings are there, so name is anthracene. This one is odorless. Not all the compounds those resembles benzene have pleasant smell or odor. Okay, so this one is odorless or no smell. It is having a specific odor. And this one is also aromatic, means having specific order. Okay. Next point is Kekulé structure of benzene. Scientist Auguste Kekulé in 1865 suggested the planar structure of benzene. He stated that the molecular formula of benzene is C6H6. It is a planar structure, means this structure is lies in a one plane. Suppose this whiteboard is one plane and emit the structure of benzene is this. Here 6 carbon atoms attached to each other with alternate single and double bond. You see here single bond, alternate to these single bonds there are double bonds, and each carbon atom carrying 1 hydrogen atom. Okay, now this structure is generally written as okay. Now next point is stability of benzene. Now what is meant by stability? मीन्स मैक्सिमम स्टेबल रहेगा. अगर एक कंपाउंड तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी मिनिमम है. एज वी सेड अर्लियर दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. अगर एनर्जी कम रहेंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी कम रहेगी. तो हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैसे एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमें उसे पहले निकाल लेना है. ये पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जिसमें हमने कहा था कि 6 कार्बन एटम है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. 6 कार्बन एटम है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड है. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. अगेन सेकेंड स्ट्रक्चर इज, now bond is shifted toward the next carbon atom, so the structure will be this, and this is the second structure. Okay, now यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ एक और स्ट्रक्चर, और इसको लिखना है फिर से इस तरह से. अब देखिए ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ये कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं. अगर हम कहेंगे कि ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, चौथे और पांचवें, छठे और पहले के बीच में, तो नेक्स्ट जो फॉर्म हो, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, उसमें ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. देखिए यहाँ पे जो कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड बने हैं उसके अल्टरनेट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे ये स्ट्रक्चर में. सो दीज आर 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कार्बन बेंजीन एटम बेंजीन स्ट्रक्चर. ओके, अब ये जो डबल बॉन्ड हुए हैं यहाँ पे, मतलब ये जो 3 डबल बॉन्ड्स है इनमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स. एज वी सेड अर्लियर दैट
each bond carry, we can say single bond carry 2 electrons, means a bond made up of 2 electrons. Okay, so here 3 double bonds are there, so total 6 electrons will be there and these are continuously delocalized. Okay, ये यहाँ पे हमेशा शिफ्ट होते जाएंगे और ये जो स्ट्रक्चर है वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स है, ए और बी बेंजीन है। अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बीच में आ जाएगी। ये जो डॉटेड जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो रिंग है डॉटेड रिंग, ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हेक्सागन निकालेंगे, उसके बीच में एक रिंग तैयार कर देंगे। तो दिस इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ बेंजीन एंड एज वी से अर्लियर दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो इसकी एनर्जी कम रहेंगी इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू दैट more the resonance structure more will be the stability. जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अब पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे बेंजीन का, और यहाँ पे है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ओके, तो ये जो हेक्सागन है, ये जो 6 बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन जो बने हैं और इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, ये सब सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड। नाउ व्हाट इज मीन बाय सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड और दोज बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप। ओके, एक्सियल ओवरलैप को एक्सप्लेन करना है तो समझ लीजिए, अगर मेरा ये हाथ कार्बन है और ये दूसरा कार्बन, अगर इन दो कार्बन में बॉन्ड बनाना है तो हमें यहाँ ऐसे करना होगा। ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप। और ये भी बता देती हूँ कि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड तैयार हो चुका है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे अटका हुआ है, तो इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप। ओके, अब ये जो पाई बॉन्ड बने हैं 3, ये तैयार होते हैं साइड वाइज ओवरलैप से। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे तैयार होता है, देखिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप और लैटरल ओवरलैप इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। नाउ ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड तैयार हो चुके हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे तैयार होते हैं? बाय पाई बॉन्ड। ये एक कार्बन एटम है, ये एक है, यहाँ पे अगर ऐसा ओवरलैप होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड बन चुका है। अब इसे अलग करने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स। These are formed by axial overlap, means sigma bond are formed by axial overlap and pi bond is formed by lateral overlap. Okay? Now, suppose means this whiteboard is a plane. अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन का, या फिर मेरे हाथ में अगर मैंने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर रख दिया होगा तो एक पूरा प्लेन है, यहाँ पे पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक प्लेन में आ जाएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे तैयार होते हैं? ये साइड वाइज या फिर एक्सियल ओवरलैप से तैयार होते हैं। तो अगर ये हेक्सागन जो बेंजीन की रिंग है मेरे हाथ पे आ गई तो ये जो पाई बॉन्ड है ये अबव एंड बिलो द प्लेन तैयार होते हैं। मीन्स अगर ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ये प्लेनर स्ट्रक्चर रखा है तो पाई बॉन्ड कैसे तैयार हो जाएंगे? देखिए, ये अबव एंड बिलो द प्लेन। एक कार्बन के लिए एक जो डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे। सो
अगर मैंने कंसीडर किया कि ये जो डस्टर है ये एक प्लेन है, यहाँ पे बेंजीन पूरा एटम है और जो पाई बॉन्ड है ये अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन. ओके, now things to remember. In benzene, all carbon and hydrogen lies in one plane. As we said earlier that if this whiteboard is a plane, all the bonds in benzene made up of carbon and hydrogen lies in one plane. Okay. 6 sigma bonds lies in the same plane. Sigma bonds are formed by axial overlap. So those 6 bonds, sigma bonds are formed which are lies in same plane, and all angles are 120 degree. Look at here. The bond between carbon and carbon is 120 degree. Carbon and hydrogen is also 120 degree. All the bonds in the benzene are 120 degree.